Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Can you hear me? Yes, sir. Can you see? Okay. Can you see the lecture notes? Simple boiler. Yes, sir. So this was about simple boiler, and somebody asked me what about preheater, superheater, and preheater, and that economizer. That also is there at the other side after this way. So because it depends on problem. Problem may be about this simple boiler without superheat and without any other thing. So if there are as you know, these are called accessories. Superheater, preheater, and economizer. These are accessories. When a buyer, when an industrialist or owner wants to buy some boiler, he has to order these accessories separately. They should be installed in place when they will import it or manufacturer will supply it local or international. They have to order these things. So only then they will be supplied. Otherwise, simple boiler will be given to him. So in simple boiler, there are mountings necessary. So this is just sketch. We are not of simple boiler. So you know these numbers are depends on you. Depends on the problem what is given. So accordingly show the things which are available in the problem. Otherwise don't show them. So in this problem, in this type of problem, there will be no accessories. So then you will draw this diagram. And numbering is up to you. My numbers are like this: 1, 2, water in and steam out, and 3 is the flue gas out. So you may do any other number if you like. So according to these numbers, you will write these formulas. People waiting enter. Now, according to your requirements, you will draw this diagram. Okay, according to problem, what is given in the problem, you will draw this diagram. Otherwise, this is just an example because to understand the things, how to do the analysis. Once you do analysis, once you are capable of doing analysis, only then you can draw this diagram. Only then you can write this formula according to these numbers. So whatever numbers are on the diagram, the same number should be in the formula. If diagram numbers are different from this formula, then don't use this formula. Change the numbers. For example, here I have 7 flue gas combustion का जो heat generator उसका नाम Q1 है. अगर आप इसको Q1 नहीं लिख रहे, QF लिख रहे, that is also possible. QC लिख रहे, that is also possible. इसलिए आपको मुख्तलिफ बुक्स में कहीं QF नजर आएगा, QC नजर आएगा, C फॉर कार्बन, F फॉर फ्यूल. तो अगर कहीं ऑयल है तो वो Q ऑयल लिखेंगे. Just fuel, any type of thing is fuel. So you can write QF. So here I have written Q1 for simplicity to understand what is 1, 2, 3. 1 is heat generated by the fuel, burning of the fuel. Burning is a chemical process and it creates heat. Per kg heat is called, per kg fuel burning heat, heat of combustion भी कहते हैं. It is CV or calorific value or heating value. So वो per kg of fuel basis होती है. उसको अब mass of the fuel, यहाँ मैंने MC लिखा है क्योंकि coal fired है. कोल मैंने कोल नहीं लिखा, सी लिखा है. सी फॉर कार्बन. कोल के लिए पूरा वर्ड नहीं. कोल में कार्बन के अलावा उसमें इंप्यूरिटीज होती है. इंप्यूरिटीज वो सल्फर होती है. इंप्यूरिटीज में उसमें मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है. इंप्यूरिटीज में और दूसरी चीजें होती है, राख होती है, ऐश. राख जिसको गिराते हैं, कोई भी चीज जलाते हैं, लकड़ी कोयला, तो उसके पीछे राख बच जाती है, वो ऐश. वो कंबशन में हिस्सा नहीं लेती, वो कार्बन नहीं होता, वो अदर देन कार्बन होता है. इसलिए हम यहाँ जो सीवी का ताल्लुक कार्बन की बर्निंग से MC लिखेंगे. और फ्यूल में अगर कहा है जी 1000 या 500 किलो फ्यूल जलाए पर आवर, तो वो फ्यूल जलाए. अब उसमें देखो वो कहा जाएगा कि 2% ऐश था, तो आप इसको 90 यानी कि 0.2% निकालेंगे, तो इसका मतलब इसमें से 1000 में से 0.2 यानी कि 2 डिवाइड बाई 100, 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा उसका राख, ऐश. उसको आप माइनस करेंगे. सो यानी कि 2% अगर ऐश है तो 98% जो है ना कार्बन है. तो 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वेट को ऑफ द फ्यूल, तो तब आपका जो है ये MC बनेगा. समझ रहे आप? उसके बाद ये इक्वेशन, ये थी इक्वेशन 1. 2 में आ जाए. 2 क्या है? Q2 आपने बताया कि ये स्टीम की हीट है.
कि स्टीम ने कितनी हीट ले ली। जो हमने फ्यूल बर्न किया इसमें से Q2 निकल गया, उसमें से स्टीम बन गई। Q2 वो हीट है जिससे स्टीम बनी, तो इसलिए हम स्टीम की वैल्यू निकालेंगे कि स्टीम साइड में कितनी हीट ट्रांसफर हुई, H2 माइनस H1। स्टीम के आउटलेट पे एंथैल्पी H2 थी, इनलेट वाटर पे H1 थी, तो H2 माइनस H1 एंथैल्पी डिफरेंस पर केजी ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द स्टीम पर आवर। तो ये हो गया आपका पर आवर स्टीम का हीट गेन बाय द स्टीम Q2। ये नोट्स देख लेंगे, ये H1 कैसे आएगा, H2 कैसे आएगा, ये आपको पता है चैप्टर 2 और 3 में आपने प्रॉपर्टीज टेबल यूज करना सिखाया था, प्रॉब्लम भी किए थे, उसके लिहाज से होगा। ये डिपेंड करता है कि ये सैचुरेटेड स्टीम निकल रही है H2 या वेट स्टीम निकल रही है H2 या सुपर हीटेड स्टीम निकल रही है, अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। वेट स्टीम का फार्मूला भी हमने बताया था आपको उन्हीं चैप्टर्स में, वो भी यहाँ हमने दोबारा लिख दिया है ब्रैकेट्स में, वो ये लिखा हुआ है, ये जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। सो H2 इज इक्वल टू HF प्लस एक्स टाइम HFG। वेट स्टीम में x मालूम होना चाहिए और वो प्रॉब्लम में दिया होगा। उसके बाद आप Q3 पे आ जाए। Q3 वो है जो फ्लो गैस अपने साथ ले रही। अब इसको कोई QG भी लिख सकते हैं, इसको आप QFL या फ्लो जो मर्जी नाम दे, तो उस अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकते हैं आपको। लेकिन बेहतर है कि आप एक ही ट्रेंड, एक ही स्टाइल फॉलो करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किताबों में मुख्तलिफ होता है, इसलिए टीचर ने आपको आसानी के लिए एक ट्रेंड बना के दे दिया, उसको फॉलो करें। हर शख्स को फॉलो करें तो गलतियां नहीं करें। अगर उसको इतना कुछ आपको प्रैक्टिस हो जाए, मास्टरी हो जाए, समझ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप जो मर्जी इनके नाम रखें, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड नाम रखें, यूनिफॉर्म किस्म के नाम रखें, तो ताकि वो चेक करने वाला भी तो टीचर है, उसके दिमाग में क्या है 1 2 3 है, उसके दिमाग में QF है QG है, तो वो फिर कंफ्यूज ना हो। जो चीज भी हम नाम रखें अपनी मर्जी से, उसने हम आपको कहते हैं कि भाई ईमेल अपने नाम से लिखो, तो आप वहां कहीं अर्तुगरल का फोटो लगाते थे, कहीं क्या लगाते थे, तो टीचर तो कंफ्यूज होगा भाई ये दाढ़ी वाला, बड़े बड़े बारों वाला ये टीचर हमारा स्टूडेंट कहाँ से है। तो यही जब आप आंसर शीट में जब आप ये लिखेंगे तो अपनी मर्जी के नंबर लगाएंगे, अपनी मर्जी के सिंबल लगाएंगे, तो टीचर तो कंफ्यूज होगा कि क्या बकवास है, मैंने तो ये नहीं पढ़ाया था। टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी डिटेल पढ़े कि भैया आपने ये क्या लिखा, क्यों की वजह एक्स क्यों लिख दिया, वाई की जगह क्यों लिख दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ गए जी। चीजों को नाम से पहचाना जाता है और हर टेक्नोलॉजी में, हर स्पेशलाइजेशन में, हर सब्जेक्ट में अपने अपने सिंबल्स होते हैं। प्लम्बिंग के अपने सिंबल्स हैं और थर्मोडायनामिक्स के अपने सिंबल्स हैं, मैकेनिक्स के अपने सिंबल्स हैं। वो सिंबल यूज करेंगे तो लोगों की समझ में आएगा, अपनी मर्जी के सिंबल लगाएंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे और आपको जो है ना दूसरों को परेशान करेंगे, वो फिर आपको परेशान करेंगे, यानी आपको उनके पास जल्दी में आपको काटा पीटा करके आपको कम नंबर देंगे। उसके बाद नोटेशन यूज इन इक्वेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो पढ़ता हूँ, बाज़ एक एक पेपर चेक करने में 3 सवाल होते हैं, हमारा आधा पौन घंटा ज़ाया हो जाता है, हालांकि काम 3 मिनट का है, अगर आप सही सही करें, क्लियरली करें। तो दूसरा कोई होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर यूईटी का, वो तो उठा के फेंक देगा कॉपी को, इसको कुछ नहीं आता। इसलिए आप सिंबल्स के बड़ा एहतियात से लिखें। मसलन एंथैल्पी पूरी दुनिया में H यूज हो रही है, आप उसको कोई और लग दें, YZ रख दें, तो ये तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है जी। तो सिंबल्स भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये जो नोटेशंस है, इसकी मैंने ये लिस्ट बना दी है। जब भी आप कोई डायग्राम बनाएं, उसके ऊपर नंबरिंग करें, फार्मूले में कोई इस तरह की एब्रीविएशन लिखें, उसकी एक्सप्लेनेशन उसके नीचे या अलग से लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, पहले बाद में बीच में जहां मुनासिब समझे, उस या साइड पे पेपर के साइड पे आंसर शीट को हाफ करके राइट हैंड पे मार्जिन में आके वहां लिख सकते हैं, नीचे टेक्स्ट में लिख सकते हैं, सेंटर में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम शुरू कर खत्म होने के बाद लिख सकते हैं, और इक्वेशन लिखने के फौरन बाद लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ मैंने इकट्ठा लिख दिया क्योंकि लेक्चर है, अगर ये चीजें मैं यहाँ बीच में लिखता तो ये फार्मूले जो है ना गड़बड़ हो जाते हैं और आपको उसको तवज्जो हट जाती। अब ये देखिए वो वाली केस आ गया जिसमें हमें मुझसे पूछा गया कि इसमें सुपर हीटर कहाँ है। तो ये सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और प्री हीटर, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्री हीटर एयर को हीट करने का हीट एक्सचेंजर है, इकोनोमाइजर फीड वाटर को गर्म करने वाला हीट एक्सचेंजर है, ये तीनों हीट एक्सचेंजर। सुपर हीटर स्टीम को सुपर हीट करने वाला हीट एक्सचेंजर है। ये सब पाइप्स होते हैं और उसको ऊपर से गर्म गैस गुजारी जाती है। ये सारी चीजें मैंने ये जो बॉयलर बनाया है, बॉयलर से बाहर दिखाई है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए, आपकी समझ के लिए। अगर इन सबको मिक्स करके इधर डाल दो
तो ये मैं नंबरिंग कैसे करूंगा, बताऊंगा कैसे कि कहाँ तो क्या चीज इंटर हो रही है, क्या लीव कर रही है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल यानी फिजिकल नहीं। फिजिकल वो होती है जो फोटोग्राफ शो करता है, फोटोग्राफ जिससे एक्चुअल कट ऑफ व्यू है, मॉडल है या प्रोटोटाइप है या एक्चुअल चीज है, बॉयलर है, उसके अंदर जाके आपको नजर आएगी, सारी चीजें अंदर फिट होती हैं। तो ये आप देखेंगे इस एनालिसिस, जिस तरह की डायग्राम ही बनाएंगे तो ना चेक करने वाले को, ना सोल्यूशन सॉल्व करने वाले को ये समझ आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। ये डायग्राम आप बनाएंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे और हीट का फ्लो शो करेंगे और पानी का, एयर का और गैस का फ्लो शो करेंगे एरो हेड्स के साथ, एरो की डायरेक्शन शो करेंगे, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। और एरो हेड, ये पाइपलाइन, सिंगल लाइन डायग्राम, ये पाइपलाइन जो है गैस की है या स्टीम की है, उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे कि एक ऑपरेटर्स में इंटर होने से पहले क्या नंबर था, उस ऑपरेटर से निकलने के बाद क्या नंबर होगा। उसमें स्टीम का नंबर सुपर हीटर में इंटर होने से पहले 3 है और सुपर हीटर से निकलने के बाद 4 है। इसके बाद प्री हीटर का जो एयर इंटर हो रही है 0.5 पे और निकल रही है 6 पे, तो एयर हीटर में जो हीट ट्रांसफर होगी तो हम 6 और 5 के दरमियान जो हीट एक्सचेंज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और हॉट गैस एयर हीटर में इंटर हो रही है 9 पॉइंट है और लीव हो रही है 10 पे। इसी तरह इकोनोमाइजर में हॉट गैस यानी कि जो फ्लू गैस है वो 8 पे इंटर हो रही है। 8 जो है ना सुपर हीटर से निकलने वाली गैस है और वही इंटर होगी इकोनोमाइजर में, तो 8 जो है ना सुपर हीटर से निकलने वाली गैस का नंबर भी है और अगला अगला जो स्टेप है यानी अगला जो डिवाइस है उसमें इंटर होने की भी हुई है। तो 8 यहाँ की एंट्री है और यहाँ की एग्जिट है, तो 9 जो है ये यहाँ का एग्जिट है इकोनोमाइजर का, हॉट गैस का। वाटर 1 पे इंटर हो रहा है इकोनोमाइजर में और 2 पे एग्जिट हो रहा है, तो वाटर का हीट ट्रांसफर जो है ना H2 माइनस H1 से होगा और गैस का CP T8 माइनस T9 होगा। तो इस तरीके से यहाँ जो सुपर हीटर में गैस इंटर हो रही है उसका नंबर 7 है, जो लीव कर रही है 8 है। यही चीजें आपको फॉर्मूले में नजर आएंगी। यहाँ मैंने लिखा है MF, मैंने आपको कहा था नंबर 1 1 2 3 F या Q या C जो मर्जी लिखें, यहाँ MF मास ऑफ फ्यूल है। अब फ्यूल का मास मैंने ये लिखा 3 पार्ट्स है, MC, MW, MH। MC वो प्योर कार्बन है जो कोल में होता है, फ्यूल में होता है, और जो यही इसी से केमिकल रिएक्शन होता है, इसी से हीट जनरेट होती है। ये वो मास है जो आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम में दिया होगा कि MW यानी कि उसमें स्टीम 2% है, एश 2% है, तो 4% तो उसमें से निकल गया, तो इसलिए MC में से 4% निकालेंगे यानी 0.96 से मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ कोल को, यू विल गेट MC या MF माइनस MW MH कर दें। तो ये चीजें हैं, तो इस डायग्राम की मदद से समझने के बाद आप इक्वेशंस पे आएंगे। तो इक्वेशंस ये हैं आपके सामने, देखिए फ्यूल QF जो है ना मास मल्टीप्लाइड बाय CV और Q कार्बन, मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय CV। फ्यूल और कार्बन में फर्क ये है, तो वो जब लिक्विड फ्यूल है और गैस फ्यूल है तो उसमें ऐश वगैरह और मॉइस्चर नहीं होती, उसमें प्योर फ्यूल होता है, तो यहाँ पूरे का पूरा मास फ्यूल का आएगा। लेकिन अगर कोल है, कोयला, तो उसमें जो है ना उसमें से, इसको सॉलिड फ्यूल भी कहते हैं, उसमें से आप जो है ना ये MF जो है ना पूरे कोयले का वजन मास है, लेकिन MH और M ये जो है वाटर उसमें से माइनस करेंगे। तो अब जो परसेंटेज की सूरत में दिया होता है, अब टोटल में से परसेंटेज कैलकुलेट करके माइनस कर दें। अब ये स्टीम का फार्मूला ये मैंने बात, स्टीम का आउटलेट जो अंदर बॉयलर के अंदर से स्टीम निकलती है वो H3 है, और जो इंटर होती है वो पानी, वो जो पानी जहां से इंटर हो रहा है वो H2 है। तो H3 माइनस H2 ये वो हीट है जो 1 kg अब स्टीम लेके जा रही है। लेकिन उसके बाद सुपर हीटर में ये स्टीम दोबारा गर्म होती है, तो वो हीट बराबर है किसके, सुपर हीट में एंट्री पॉइंट जो है ना 3 है और एग्जिट पॉइंट 4 है, तो H4 माइनस H3 होगा। आप गैस वाली साइड से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर गैस की प्रॉपर्टी दी हुई है तो MgCpg T7 माइनस T8 यानी कि टेम्परेचर दिया हो तो Cp मालूम है 1.0 होती है या 1.01 होगी, 001। तो ये मास ऑफ गैस भी मालूम, अगर ये नहीं मालूम हो तो आप एंथैल्पी की मदद से स्टीम वाली साइड से भी हीट कैलकुलेट, जो हीट आपको हॉट गैस ने दी स्टीम को वो हीट स्टीम में यहाँ ऐड हो गई, तो वो स्टीम वाली साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और गैस वाली साइड से। ये देखिए हीट एक्सचेंजर में दो करंट्स होते हैं, फ्लूइड के दो किस्म के, एक हॉट फ्लूइड होता है, एक कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ सुपर हीटर में हॉट फ्लूइड जो है ना फ्लू गैस है, कोल्ड फ्लूइड जो है ना वो
हालांकि कोल्ड नहीं है। हॉटर, इसको आप हॉटर कहेंगे और इसको कोल्डर कहेंगे, यानी कि सुपर ये जो फ्लू गैस है उसके मुकाबले में स्टीम का टेम्परेचर कम है। हालांकि स्टीम का टेम्परेचर 250 सेंटीग्रेड हो सकता है, फ्लू का गैस 400 सेंटीग्रेड हो सकता है, दोनों गर्म है, लेकिन हम एक को कहेंगे हॉटर, दूसरे को कहेंगे कोल्डर। तो एक हॉटर स्टीम होती है, कोल्डर स्टीम होती है। इसी तरह यहाँ हॉटर गैस है और कोल्डर वाटर है, इसी तरह यहाँ कोल्डर एयर है और हॉटर गैस है। तो दो फ्लूइड्स के दरमियान हीट ट्रांसफर होता है, इसी को हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो दोनों साइड से हॉटर फ्लूइड जितनी हीट देता है कोल्डर फ्लूइड उसको ले लेता है, तो इसलिए दोनों साइड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों क्यू इक्वल होंगे। अच्छा, अब जो है प्री हीटर का यही फार्मूला है कि आप इनलेट और आउटलेट में पॉइंट्स गैस वाली साइड से करेंगे तो सीपीटी आएगा, तो सीपी एयर 1 होता है, सीपी ऑफ एयर 1 होता है, मास ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय सीपी ऑफ एयर। मास ऑफ एयर प्रॉब्लम में दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ फुल अमाउंट नहीं दिया होता, उसमें कहते हैं जी 1 हिस्सा फ्यूल है और 9 हिस्सा एयर है, तो 1 और 9 का रेशियो है। तो इसका मतलब अगर हर केजी कैलकुलेशन ऑफ केजी ऑफ फ्यूल होता है, तो पर हर केजी पे अगर 9 किलो एयर जा रही है तो आप केजी ऑफ फ्यूल को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट मास ऑफ एयर। समझ गया? फ्यूल का मास मालूम है लेकिन एयर का मास नहीं दिया, वो कहते जी फ्यूल और एयर में बस एयर जो है 9 गुना है, 9 टाइम्स है, तो आप उसको 9 टाइम्स कर दें फ्यूल के मास को, तो एयर का मास आ जाए, तो यहाँ आप एयर का मास यहाँ लिखेंगे इस फार्मूले में। mg फ्लू गैस है, उसका भी आपको रेशो दी होगी कि फ्यूल के मुकाबले, यानी कि 1 किलो फ्यूल जलने से कितनी मास उसका फ्लू गैस का मास कितना जनरेट होता है, वो भी जाहिर है फ्यूल का मास प्लस एयर का मास मिलके फ्यूल की जो प्रोडक्ट्स हैं, जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वाटर वेपर पैदा होता है, और उसके साथ जनाब वो बाकी नाइट्रोजन वगैरह जाती है क्योंकि एयर में नाइट्रोजन आती है, उस टोटल मास को में जो है फ्यूल भी ऐड हो जाता है, तो फिर वो mg बन जाता है। तो mg बता दिया जाएगा कि भाई जिस तरह एयर का बताया गया फ्यूल के मुकाबले में वो 9 गुना ज्यादा। तो एक्चुअली mg और m एयर ऑलमोस्ट बराबर होती है, इसलिए कि mg में से मास ऑफ खाली मास ऑफ फ्यूल माइनस करेंगे तो m एयर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है सराउंडिंग, यानी इसको हम अनअकाउंटेबल भी कहते हैं। सर, मैंने लिखा सर, SURR सर, SURR सर शॉर्टकट है सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग यानी कि जो बाउंड्री, जो बॉयलर की बाउंड्री है उसका शेल है, शेल से बाहर वो रूम के अंदर है, बॉयलर रूम है, वर्कशॉप है, जो भी है, शेड है, फैक्ट्री है, तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, उसको जो हीट ट्रांसफर होती है बॉयलर के शेल से, तो उसको हम क्यों सराउंडिंग कहते हैं। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं अनअकाउंटेबल। अनअकाउंटेबल यानी इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट हो सकती है कि आपके पास क्यू एफ था, वो इतनी इतनी ये क्यू एस चला गया, क्यू सुपर हीट चला गया, क्यू इकोनोमाइजर चला गया, क्यू प्री हीटर चला गया और क्यू एटमॉस्फेयर चला गया। ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, तो आप क्यू एफ में से माइनस कर दें तो कुछ जो बाकी रह गया, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्क आएगा वो दैट इज क्यू सराउंडिंग। अब ये जो है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का फार्मूला है, कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन हमने कैलकुलेशन नोट्स में, थ्योरी वाले नोट्स में दी हुई है। दिस इज हीट सप्लाइड, सॉरी रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टीम, यानी कि केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल ब्रॉट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एंड एट यानी कि फ्रॉम एंड एट का लफ्ज यूज हुआ था। ये जो नीचे वाला डिजिट है 2257, ये एक्चुअली ये किलो जूल्स पर केजी ऑफ स्टीम है फ्रॉम एंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऊपर वाला जो है H4 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाई m मास ऑफ द स्टीम, ये वो हीट है जो ये खाली ब्रैकेट वाली H4 माइनस H1, ये वो हीट है जो एक्चुअली बॉयलर में सुपर हीटर के बाद हमें मिलती है H4। उसमें से वन वो है जो जब से हमने कोल्ड वाटर इंटर किया था प्री हीटर इकोनोमाइजर से पहले, इकोनोमाइजर से में इंटर होने वाला पानी जो था उसकी एंथैल्पी H1 थी, और सुपर हीटर से स्टीम निकलने वाली जो थी उसकी एंथैल्पी H4 थी। तो H4 माइनस H1 वो टोटल हीट है जो बॉयलर में से लेके, बॉयलर और फ्लू गैस वगैरह सब में से लेकर, बॉयलर फ्लू का हिस्सा है, फ्लू गैस जो है ना बॉयलर का हिस्सा है, फ्यूल के जलने से वो हीट भी पैदा होती है, जो गैस ले जाती है, गैस में से हमने कुछ हीट निकाल ली तो एंथैल्पी बढ़ गई H4। इसी तरह वाटर की एंथैल्पी बढ़ गई, इंटरिंग वाटर की एंथैल्पी तो वही होगी जो इंटरिंग ठंडा पानी है H1। तो H4 माइनस H1 की टोटल हीट जो है ना स्टीम लेके जा रही है, तो उसको आप डिवाइड कर रहे हैं। ये एक्चुअल है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, किसी भी गिवन प्रेशर पे हो सकती है, लेकिन नीचे वाली जो है 2257 ये एक किलो वाटर
एट एंड फ्रॉम, यानी फ्रॉम एंड एट। फ्रॉम 100 पानी 100 पे होगा और स्टीम भी 100 पे होगी, इसको कहते हैं फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है और वो 2257 है किलो। तो ये तो किलो जूल पर केजी कैंसिल हो जाएगा, तो एम एस हमारा एम एफ रह जाएगा। एम एस दिस इज हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल, तो एम एस डिवाइड बाई एम एफ मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल, तो एम एस हमारा एफ एफ। तो यूनिट क्या है, केजी ऑफ स्टीम पर आवर, पर आवर लेकिन यहाँ लिखा नहीं है केजी ऑफ स्टीम पर आवर, इसलिए कि ये जो मास है ये अंडरस्टूड है कि पर आवर है, लेकिन ये जो मास है ये इससे डिवाइड करने से पर आवर पर केजी ऑफ फ्यूल भी आता है, तो हम इसको केजी ऑफ स्टीम पर आवर पर केजी ऑफ फ्यूल, ये अंडरस्टूड पर केजी ऑफ फ्यूल अंडरस्टूड है यहाँ से। तो लेकिन यहाँ पर केजी ऑफ फ्यूल नहीं लिखते, अंडरस्टूड है कि केजी ऑफ स्टीम पर आवर पैदा होगी पर केजी ऑफ फ्यूल। ये 8 नंबर इक्वेशन दो नोट कर लें। उसके बाद एफिशिएंसी का फार्मूला ये है कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, वो स्टीम है जो हम जनरेट कर रहे हैं और वो हीट है जो स्टीम लेके जा रही है, तो वो है एम एस H4 माइनस H1 एक्चुअल, और नीचे जो है एम एफ मल्टीप्लाइड बाई ये इस फार्मूले में 8 नंबर में 9 में न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सेम है, इसलिए कि ये हीट जनरेटेड हीट टेकन बाय द स्टीम, और नीचे वाला ये ऊपर वाले फार्मूले में डिफरेंट है इसलिए कि वो जो फ्रॉम एट 100 वाली इक्वेशन डिजिट है। नीचे जो है ना फ्यूल ने कितनी हीट दी, ये इक्वेशन नंबर 9 में एफिशिएंसी वाले फार्मूले में फ्यूल ने कितनी हीट दी, वो मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय सीवी, यानी कि 1 किलो फ्यूल कितनी हीट जनरेट करता है, तो वो सीवी कहलाता है। तो ये आपके पास टोटल 9 फार्मूले बनते हैं इस एनालिसिस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स वाला है, बॉयलर कैलकुलेशंस आपके सामने है। नाउ कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट, बॉयलर कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, ये बॉयलर कैलकुलेशन जो है ना, ये एक और बुक से है जो ये ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है राइनर, RYNER या RAYNER, गलत स्पेलिंग है, RYNER होगा या RAY है, RYNER फोर्थ एडिशन बेसिक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की एक पुरानी सी किताब है और ये मेरी लाइब्रेरी में थी तो उसमें से मैंने ढूंढा और ये मिल गया। अब ये उसके है एक और बुक, इसके अलावा भी मैंने कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर सकती हैं, तो इनको आप देख लें। इसमें वही फार्मूला यूज हुए जो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई चीज क्लियर ना हो, यहाँ लिखे हुए हैं वो रिपीट हो रहे हैं, अगर कोई चीज क्लियर ना हो, नंबर्स की वजह से कंफ्यूजन हो रहा हो, सब क्योंकि अलग बुक्स में से उसी को मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया, तो हो सकता है कुछ नंबर वगैरह समझ में ना आए, तो आप फौरन वो जो है ना, वो मैंने अभी जो आपको मेरे अपने बनाए हुए जो नोट्स हैं वो देखें और उसमें डायग्राम को रेफर करें, डायग्राम के नीचे जो फार्मूले लिखे हैं वो रेफर करें, और उसमें जो चीजें नहीं है उसको आप इग्नोर कर दें, जो चीजें हैं उनको काउंट करें और अपने हाथ से नया स्केच बनाएं। अगर वो फिगर मैच नहीं कर रही, यानी प्रॉब्लम में वो चीजें मैच नहीं कर रही जो मैंने डायग्राम में दिखाई है, तो आप अपनी मेरी डायग्राम को देख के अपनी डायग्राम बनाएं, और कागज और पेंसिल लेकर और इरेजर अपने पास रखें, कागज रखें, पेंसिल रखें, और इरेजर से रफ स्केच बना के जल्दी से बना के आप उसमें नंबरिंग करें और वो चीजें इंक्लूड करें जो प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं 2256.9 किलो जूल पर केजी, ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम एन 800 डिग्री सेंटीग्रेड। वो उस फार्मूले में मैंने लिखा था 2257, तो 2256.9 हो या कुछ हो उसको इग्नोर कर दें आप, राउंड फिगर 2257 याद रखें। बाज़ वक़्त प्रॉब्लम में नहीं दिया होता, इसने तो सोल्यूशन में दिया है, प्रॉब्लम में ये नहीं दिया होगा, आपको सोल्यूशन में इसको याद रखना है कि 2257 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ इसने 2256.9 हो, जाहिर है इसमें थोड़ा सा रिजल्ट में फर्क आएगा परिणाम, तो उसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है, अब ये वेट स्टीम है, HF इज इक्वल टू X टाइम HFG, तो ये आप देख लें, ये मैं असाइनमेंट के तौर पर आपको अलग से दे दूंगा, आपको सिर्फ ये करना है, ये चीजें मैं आपको डिस्पैच कर चुका हूँ, यानी अपलोड कर चुका हूँ, ये आपको वहां से ईमेल चेक करके वहां से डाउनलोड कर लें, और ये चीजें आपको करनी होगी, अपने हाथ से करनी होगी, डायग्राम बनाना जरूरी है, फार्मूला लिखने जरूरी है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिखना है, टाइप नहीं करना, टाइप मैथमेटिक्स को करना बड़ा मुश्किल है, टाइप कंज्यूमिंग है, और टाइप आप करेंगे और दूसरा उसको कॉपी एंड पेस्ट करके मुझे दे देगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने किया है, अपनी अपनी हैंड राइटिंग में करेंगे, तो रूल्स फॉलो करें, जो रूल फॉलो नहीं करेगा मैं उसको डिलीट कर दूंगा,
मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं अपने कंप्यूटर में भी उसको सेव करूं और पढ़ूं भी। तो अपना वक्त भी जाया करूं, कंप्यूटर की मेमोरी भी जाया करूं, स्टोरेज भी जाया करूं। तो आप वो चीज दें जो मैं मांग रहा हूं। मैंने आपको रूल्स लिख के दे दिए कि भाई इसको हैंड रिटन करो, उसका फोटो लो और उस फोटो को पीडीएफ कर लो। पीडीएफ करने का तरीका नहीं आता तो उसको जेपीजी को कॉपी एंड पेस्ट कर दो सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो उसका हिस्सा बन जाएगा और वो मुझे वो कर दो, होगा वो फोटो। लेकिन वो नहीं चलेगा कि आपने टाइप रिटर्न वर्ड में टाइप कर दी, उसकी जरूरत नहीं है। ये कॉपी एंड पेस्ट होता है, ठीक है। तो मकसद है कि आपको काम करना है, ज्यादा स्मार्ट बनने की, चीटिंग करने की, अपने दोस्त को के ईमेल से भेजने की, जी मेरे पास ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये भी बकवास है, ये भी चीटिंग है, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो वो जी मेरे इलाके में ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे ऐसे मुझे सिंधी भाई मिले जो जी मैं तो गोठ में रहता हूँ, मैं तो दूर दराज देहात में रहता हूँ, हमारे यहाँ बिजली नहीं, कंप्यूटर वाले ही नहीं है। और मैंने कहा कंप्यूटर वाले के पास जाओ, वो प्रिंट कर देगा। और ये हमारे पास कंप्यूटर की दुकान ही नहीं है, हमारे पास प्रिंटर की दुकान नहीं, फोटो स्टेट की दुकान नहीं है। और उसने कुछ भी सबमिट नहीं किया, मैंने उसको जीरो दिया। भाई तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम्हारे पास प्रिंटर नहीं है, तुम्हारे पास प्रिंटिंग शॉप नहीं है, तुम मोबाइल की शॉप में नहीं जा सकते, तुम प्रिंटर फोटो स्टेट वाली दुकान पे नहीं जा सकते, शहर चेंज कर लो। अगर इतने बड़े आजकल हर गांव में हर जगह हर चीज मिलती है। अगर गांव के अंदर नहीं है तो गांव के पास किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पर कोई बाजार होता है, कोई सिटी होती है, कोई टाउन होता है, हर चीज हर जगह मिलती है। मोबाइल फोन हर जगह मिलता है, फोटो स्टेट हर जगह मिलता है, जहाँ स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, हर जगह ये चीजें मिलती हैं। तो ये बहानेबाजी की, ये मैं फोटो स्टेट नहीं कर सका, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मेरे पास कागज नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो भाई भाड़ में जाओ। इंजीनियर कैसे बन रहा है मुफ्त में? नहीं बन सकते। तो ये आपने देख लिया बॉयलर की प्रॉब्लम्स। अच्छा अब टाइम भी खत्म हो गया है, वो मैं आपको होमवर्क के ऊपर दे दूंगा और ये चीजें आपको हैंड रिटन करके कैलकुलेटेड हैं। आप उसको इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो, काम करने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। काम करने की अपने हाथ से काम करेंगे फायदा होगा। खाली देख के कहेंगे हाँ जी समझ में आ गए, काफी नहीं। समझ में नहीं आया तो वीडियो है भी आपको दे रहा हूँ, वीडियो आप बार बार देखें और उसको समझने को आगे करें, फॉरवर्ड करें, बैकवर्ड करें। वीडियो का ये फायदा है कि अपनी स्पीड से पढ़ें, अभी टाइम नहीं, रात को पढ़ें, रात को टाइम नहीं, सुबह पढ़ें, छुट्टी वाले दिन पढ़ें और बार बार पढ़ें। एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो रिवर्स कर लें उसको थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाए।